Hello students, today we will start chapter 9. The title of the chapter is temperature. So we will study in this chapter about meaning of heat and temperature and its importance, meaning of atmospheric insolation, the heating up of air, the factors affecting the distribution of temperature. So let's start about temperature. We experience heat and chill with the change in seasons. This happens normally because of the air becoming hot or cold. The heat prevalent in the air is called temperature. The temperature of a particular place denotes the degree of hotness of air at that place. It is measured by means of an instrument called thermometer. Temperature is measured in centigrade or Celsius. Importance. When we talk about the season and climate of a particular place, it means we are talking about the important elements like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, clouds and rain. However, the most important among them is temperature because it influences all the other factors. How the atmosphere gets heated. The earth and the atmosphere gets heated up by the sun. The sun is an inexhaustible store of light and heat. The sun is in fact a big ball of fire. The heat emitted by the sun is called solar insolation. The sun's rays are exposed to the atmosphere before reaching the land, due to which the upper layer of the atmosphere gets heated up. When the rays of the sun come in contact with the surface of the earth, it starts heating faster than the atmosphere. But the earth radiates back this heat slowly. This process is known as radiation. The heat radiated from the earth's surface also heats up the surrounding atmosphere. Therefore, the temperature also rises. As a result of heating up, the air becomes light and rise. However, as the air rises upwards, its temperature decreases. Heating up of air. The air gets heated in three ways. First, the upper part of the atmosphere gets heated up due to solar insolation. Second, when the atmosphere comes in contact with the hot surface of the earth, the lower part of the atmosphere gets heated up. When the lower part of atmosphere gets heated, it rises upwards and its place is taken over by cold air, which also becomes light after getting water and moves upwards. This whole process is called convection. स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के बारे में आप रोज ही लगभग उसके बारे में चर्चा करते हैं या उस वर्ड को सुनते हैं. तो व्हाट इज द टेम्परेचर, आप समझते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जो एयर है और जो हमारा सराउंडिंग एरिया है वो सारा गर्म हो जाता है. उसे हम टेम्परेचर कहते हैं.
सो स्टूडेंट्स, अलग अलग सीजन में हम हीट और चिल कोल्डनेस को हम महसूस करते हैं। तो नॉर्मली जो हवा होती है, यदि वो हॉट होती है तो हमें हॉटनेस लगती है, यदि वो कोल्ड होती है तो हम कोल्डनेस फीलिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, यह अगर हीट हमें महसूस हो रही है तो हवा में अगर गर्माहट है और हीट हमें महसूस हो रही है तो इसे ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। सुना होगा आपने कि आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो टेम्परेचर लो भी हो जाता है। जब ठंड होती है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो हवा में जब गर्मी आ जाती है तो हम उसे किसी पर्टिकुलर प्लेस में यदि वो गर्मी आ जा रही है तो हम उसे टेम्परेचर की इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, और जो टेम्परेचर है उसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस में उसे हम मेजर करते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो टेम्परेचर, जो सीजन होते हैं, जो क्लाइमेट होता है हमारा, वो समय के अनुसार बदलता है। ठंड में जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, गर्मी में गर्म हवाएं बहने लगती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं। यदि हम किसी क्लाइमेट या सीजन की बात कर रहे हैं तो हम जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी बात करते हैं, लाइक टेम्परेचर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, विंड हुआ, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेन, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एटमॉस्फेयर के लिए, किसी भी सराउंडिंग, अर्थ के सराउंडिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर से ही बाकी सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो, हमारी जो अर्थ है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन से हीट लेता है, और जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट और हीट का, जैसे कि आप जानते हैं। और सन से ही हमारे अर्थ पर गर्मी और सूर्य की जो रोशनी है उससे प्रकाश होता है। तो जो हीट जो है सन से प्राप्त होती है उसे सोलर इंसोलेशन कहते हैं। जो सन रेज है वो एटमॉस्फेयर पर लैंड पर आती तो तेजी से है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, लेकिन जो अर्थ होती है जब वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इस गर्मी को अर्थ की जो रेडिएट्स हैं वो बैक बहुत स्लोली कर पाती है। एब्जॉर्ब जल्दी कर लेती है लेकिन वो बैक बहुत स्लोली करती है। तो हमारा जो ये जो प्रोसेस है इसे रेडिएशन कहते हैं, और बैक स्लोली बैक होने की प्रोसेस जो होती है वो स्लोली होती है सन रेस को। तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और इस तरह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। हीटिंग अप ऑफ एयर जो है वो 3 तरीकों से बढ़ती है। एयर की जो गर्मी है वो 3 तरीकों से बढ़ती है। जो अपर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का वो सोलर इंसोलेशन से बढ़ जाता है। सोलर इंसोलेशन, जैसे कि आपने देखा कि सन रेज अर्थ पर आती तो तेजी से है लेकिन वो बैक होने में समय लेती हैं, ये रेडिएशन होता है और इसे ही सोलर इंसोलेशन कहते हैं। देन जब एटमॉस्फेयर जो होता है वो सरफेस पर के संपर्क में आता है तो जो अर्थ का जो लोअर पार्ट है वो भी गर्म हो जाता है, और इस वजह से भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हवाएं गर्म हो जाती हैं। जब अर्थ का लोअर पार्ट गर्म हो जाता है तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है, और जब ऊपर की ओर वो उठता है तो कोल्ड एयर के संपर्क में आ जाता है। कोल्ड एयर के संपर्क में, ठंडी वायु के संपर्क में आ जाने से वो जो उसकी जो खाली स्थान हो चुका होता है, जो गर्म हवा, जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर वो ऊपर की ओर उठ जाता है जब गर्म हो जाता है लोअर पार्ट, तो उसका जो प्लेस है वो खाली हो जाता है और कोल्ड एयर वहाँ पर आ जाती है। तो ये कोल्ड एयर यहाँ पर भर जाती है, और इस तरह से फिर से ये क्या होता है, फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। फिर से गर्म होगा, फिर से वहाँ पर ठंडा आ जाएगा, फिर मतलब जितनी ठंडी चीज़ है वो वापस यहाँ पर आती जाएगी खाली स्थान में, और ऊपर वो गर्म होती जाएगी और ऊपर उठती जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसे ही फिर से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है इसे ही कन्वेक्शन कहते हैं।